Welcome to Khan's Academy. This is Dr. Divya Jumloki, and today we are going to study about mitral stenosis. Those who want to study about aortic stenosis can check my last video. So without wasting our time, we'll just dive into the topic of mitral stenosis. So first we are going to study about the etiologies. The first one is rheumatic fever. So rheumatic fever is the leading cause of mitral stenosis. There are other less common etiologies of mitral stenosis which include congenital mitral valve stenosis. But these are less common. You have to basically learn about rheumatic fever, which is the leading cause of mitral stenosis. The next one is mitral annular calcification. Rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus are also the causes behind the mitral stenosis. So, if we talk about the patients who are suffering from rheumatic heart disease, like 40% of those patients suffer from predominant mitral stenosis or pure mitral stenosis. But what about the rest of the patient? The rest of the patient who are suffering from rheumatic heart disease, there will be lesser degrees of mitral stenosis. And remember my thing that this lesser degree of mitral stenosis will accompany either mitral regurgitation or aortic valve disease, like aortic stenosis I have told in the last topic. And one important thing is there that incidence of rheumatic heart disease or rheumatic fever has reduced in the temperate climates, and therefore the incidence of mitral stenosis has also got reduced there. But it is a major threat in developing nations, especially in tropical and semi-tropical climates. So now we are going to study about the pathology, what is happening in rheumatic mitral stenosis. So, in rheumatic mitral stenosis, there will be chronic inflammation और इसकी वजह से लीफलेट्स जो होंगी वॉल्व लीफलेट्स वो थिक हो जाएंगी, उसमें फाइब्रस टिश्यू और कैल्सिफिक डिपॉजिट्स होने लग जाएंगे. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो माइट्रल कॉमिश्वर्ड्स होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं, कॉर्डा टेंडिनी फ्यूज़ हो जाते हैं, कॉर्डा टेंडिनी की लेंथ भी छोटी हो जाती है, वॉल्वुलर कस्प जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं और इसकी वजह से कैसा शेप आता है, फिश माउथ वॉल्व, फिश माउथ स्टेनोसिस. ये मैंने आपको rheumatic heart disease में भी बताया है in the my video of acute rheumatic fever, so you can see also there about fish mouth stenosis जो मैंने बता रखा है. जब हमारी mitral valve stenotic हो जाती है और उसमें कैल्सिफिकेशन होने लगता है तो उसकी वजह से लीफलेट्स जो होते हैं वो इमोबलाइज हो जाते हैं, वो मोबाइल नहीं रहते और इसीलिए ओरिफिस जो होता है वो और भी ज़्यादा नैरो हो जाता है. तो अब हमने देखा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और लीडिंग कॉज है माइट्रल स्टेनोसिस का वो है rheumatic फीवर. जो लेस कॉमन एटियोलॉजीज़ है वो है कंजेनाइटल माइट्रल वॉल्व स्टेनोसिस, सीवियर माइट्रल एन्युलर कैल्सिफिकेशन, SLE, रूमेटॉइड आर्थराइटिस. तो लेकिन आपको rheumatic फीवर तो याद रखना ही है. और इस rheumatic mitral stenosis में क्या होगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, लीफलेट्स में फाइब्रस फॉर्मेशन, फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगा, कैल्सिफिक डिपॉजिट्स होंगे और जब कैल्सिफिकेशन हो जाता है ना तो ये स्टेनोटिक माइट्रल वॉल्व बहुत ज़्यादा इमोबलाइज हो जाती है और जो ओरिफिस है वो और भी ज़्यादा नैरो हो जाता है. और क्या होता है ना कि जब ये कैल्सिफिकेशन हो जाता है वॉल्व का तो फिर थ्रोम्बस फॉर्मेशन और आर्टीरियल इमोबलाइजेशन भी हो जाता है. ऐसा नहीं है कि हमेशा हर केस में होगा, बट यस इसके चांसेस रहते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ mitral stenosis. So what do you think about the area of mitral valve orifice? So it is about 4 to 6 centimeter square. तो जब ये एरिया लेस देन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि जब स्टेनोसिस होगी तो सरफेस एरिया कम हो रहा है, तो
लेस देन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर जब एरिया हो जाता है तो ब्लड कैसे फ्लो करेगा फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल? वो तभी फ्लो कर सकता है जब आपका लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होगा। और फिर ये भी सोचेंगे हम कि अगर ये एरिया और ज़्यादा रिड्यूस हो जाए टू लेस देन 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर तो उसको हम सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस बोलते हैं। और इसके लिए आपका लेफ़्ट एट्रियम प्रेशर कम से कम 25 mmHg होना चाहिए, तब जाके एक नॉर्मल कार्डिक आउटपुट आता है। मतलब तभी जाके कि लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल ब्लड फ्लो होगा, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से आगे जाके एओर्टा में होगा। तो अब हम सोचेंगे कि माइट्रल वॉल स्टेनोसिस के क्या सिम्टम्स होते हैं और वो क्यों आ रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करेगा और जब ये फ्लो करता है नॉर्मली, लेकिन अब अगर माइट्रल वॉल्व स्टेनोटिक है तो प्रेशर बैक प्रेशर जाता है। मतलब लेफ़्ट एट्रियम प्रेशर इंक्रीज़ होगा, फिर पल्मोनरी वेन का प्रेशर इंक्रीज़ होगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो जब ये पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर इंक्रीज़ होते हैं, इसकी वजह से पल्मोनरी कंप्लाइंस जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और उसकी वजह से सिम्टम क्या आता है आपको, एक्सर्शनल डिज़निया, ऑर्थोपेनिया, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिज़निया। तो बेसिकली जो सिम्टम्स आते हैं वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से आते हैं। और अगर हम देखें पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बारे में तो क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया माइट्रल वॉल्व स्टेनोसिस हो चुकी है तो बैक प्रेशर जाएगा, तो आपका लेफ़्ट एट्रियल प्रेशर एलिवेट हो जाएगा। जब लेफ़्ट एट्रियल प्रेशर एलिवेट होगा तो बैकवर्ड ट्रांसमिशन होगा इस प्रेशर का। सेकेंड चीज़, आपके जो पल्मोनरी आर्टरी है उसका कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, इंटरस्टिशियल इडीमा हो जाएगा स्मॉल पल्मोनरी वेजल्स में। अभी क्या है कि जब अगर आपका पल्मोनरी हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से फिर से बैक में देखो तो अब क्या होगा, राइट वेंट्रिकल जो होगा उसका इनलार्जमेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ सेकेंडरी ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होने के चांसेस होते हैं, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन होने के चांसेस रहते हैं और राइट साइडेड हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं इन द केस ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस। तो टेम्परेट क्लाइमेट्स में देखा गया है कि जो लेटेंट पीरियड है जहाँ पे एक इनिशियल अटैक आता है रूमेटिक कार्डाइटिस का और सिम्टम डेवलप होने का, उन दोनों के बीच में 2 डिकेड्स हो जाते हैं। मतलब सिम्टम्स माइट्रल स्टेनोसिस के डेवलप होने में 2 डिकेड्स लग जाते हैं। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो अगर आपको पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन आपने पढ़ा हुआ है तो इट विल बी वेरी वेरी इजी टू स्टडी अबाउट माइट्रल स्टेनोसिस सिम्टम्स, बिकॉज वही सिम्टम आ रहे हैं क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल से प्रेशर लेफ़्ट एट्रियम में जा रहा है और फिर पल्मोनरी सिस्टम में जा रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या सिम्टम्स आते हैं, लाइक फर्स्ट वन इज़ योर exertional dyspnea, ऑर्थोपेनिया, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, पिंक फ्रॉदी स्पूटम, ये सारे ही सिम्टम्स आपको मिलने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं पिंक फ्रॉदी स्पूटम यानी हिमोप्टाइसिस की, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो पल्मोनरी ब्रोंकियल वेनस कनेक्शंस हैं उनका रप्चर हो जाता है। क्यों, जब आपका पल्मोनरी वेनस हाइपरटेंशन होता है तो उसकी वजह से पल्मोनरी ब्रोंकियल वेनस कनेक्शंस जो होते हैं उनका रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हिमोप्टाइसिस मिलती है। और क्या होता है कि जो अनट्रीटेड माइट्रल स्टेनोसिस के केसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि पल्मोनरी इन्फेक्शन जैसे ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोनिमोनिया, लोबार निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू ऐड हेयर इज़ कि आपको पता है पल्मोनरी वेस्कुलर बेड में तो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको अब तक बताई चीज़ें, लेकिन इसके साथ साथ एल्वियोलाई में भी फाइब्रस थिकनिंग हो जाती है। जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं वहाँ पे भी फाइब्रस थिकनिंग हो जाती है और बहुत कॉमन होता है माइट्रल स्टेनोसिस में। अब अगर ऐसा होगा तो इसकी वजह से आपकी जो टोटल लंग कैपेसिटी है, मैक्सिमल ब्रीदिंग कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी है, ऑक्सीजन अपटेक है, वो सब कुछ रिड्यूस्ड हो जाता है। और जैसे ही इंसान एक्सरसाइज करता है, मतलब कोई भी एक्टिविटी करता है, तो पल्मोनरी कंप्लाइंस जो होता है वो गिर जाता है। क्यों, क्योंकि आपका पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिज़िकल फाइंडिंग्स।
तो फिज़िकल एग्जामिनेशन माइट्रल स्टेनोसिस में आपको क्या मिलेगा? तो अगर हम इंस्पेक्शन एंड पैल्पेशन की बात करते हैं, जो लोग सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस से सफ़र कर रहे होते हैं उनमें आपको मलार फ्लश दिखता है और इसकी वजह से उनका पिंच्ड और ब्लू फेसेस होते हैं। और सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने की वजह से आपको जुगुलर वेनस पल्स में आपको प्रोमिनेंट ए वेव्स दिखती हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा क्या है कि आपको राइट वेंट्रिकुलर टैप भी मिल सकता है लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर के अलोंग, जो ये दिखाता है कि आपका जो राइट वेंट्रिकल है वो इनलार्ज है। साथ साथ आपको डायस्टोलिक थ्रिल भी कभी कभी केस में मिल सकती है कार्डियक एपेक्स पे, जब पेशेंट जो होता है वो लेफ़्ट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन पे होता है। ठीक है, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस में पिंच्ड और ब्लू फेसेस मिलते हैं और जुगुलर वेनस प्रेशर में प्रोमिनेंट ए वेव्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ऑस्कल्टेशन में क्या मिलेगा। तो जो आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड होती है वो प्रोमिनेंट होती है और वो थोड़ा सा डिले करते हैं। ये कब होता है? जब आपका डिजीज़ का अर्ली स्टेज होता है। अगर हम सेकेंड हार्ट साउंड की बात करते हैं तो उसका जो पल्मोनिक कंपोनेंट है यानी P2 वो भी जो होता है प्रोमिनेंट होता है विद एलिवेटेड पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। एंड ये जो दो कंपोनेंट होते हैं सेकेंड हार्ट साउंड के वो नैरो स्प्लिट होते हैं। आपको इस केस में सॉफ्ट ग्रेड 1 और ग्रेड 2 या 6 सिस्टोलिक मर्मर्स एपेक्स पे या फिर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे जो भी पेशेंट प्योरली माइट्रल स्टेनोसिस से सफ़र कर रहा है उसमें मिलते हैं। इसके अलावा आपको राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर वाले सिम्टम्स मिलेंगे। वो क्या क्या होता है? जैसे हिपैटोमेगाली, एंकल एडीमा, एसाइटिस, प्लूरल डिफ्यूजन, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। अब मैं कुछ ऐसी फिज़िकल फाइंडिंग्स बताऊंगी जो अगर माइट्रल स्टेनोसिस के साथ साथ आपको कोई और वैल्वुलर डिजीज़ है तो तब आपको वो फाइंडिंग्स मिलेंगी, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये केस इसके साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। जैसे कि सपोज़ करो माइट्रल स्टेनोसिस के साथ ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन है तो आपको एक पेनसिस्टोलिक मर्मर मिलेगा अलोंग द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, और ये मर्मर इंस्पिरेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा लाउड होगा और एक्सपिरेशन के टाइम पे, फोर्स्ड एक्सपिरेशन के टाइम पे डिमिनिश हो जाएगा। इसको बोलते हैं कैरवेलोस साइन। जब पल्मोनरी रिगर्जिटेशन होगा तो आपको मिलता है ग्राहम स्टील मर्मर, जो कि एक हाई पिच डायस्टोलिक डिक्रेसेंडो ब्लोइंग मर्मर होता है और ये आपको मिलता है लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर के अलोंग। क्यों? क्योंकि आपकी जो पल्मोनरी वॉल्व रिंग है उसका डायलिटेशन हो जाता है। तो ये उन पेशेंट में होगा जिनको माइट्रल वॉल्व डिजीज़ है और सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। अब हम ये देखेंगे कि हमें लेबोरेटरी एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम पेशेंट का ईसीजी करवाएंगे। तो ईसीजी में क्या मिलने वाला है? तो आपको पता है कि माइट्रल स्टेनोसिस में क्या होगा, बैक प्रेशर जा रहा है यानी लेफ़्ट एट्रियम एनलार्जमेंट होगा। जब लेफ़्ट एट्रियम एनलार्जमेंट होता है तो पी वेव क्या दिखाती है? आपकी बाइफिड पी वेव मिलती है। जब आपका राइट एट्रियल एनलार्जमेंट होगा, क्यों होगा राइट एट्रियल एनलार्जमेंट? क्योंकि बैक प्रेशर के लेफ्ट एट्रियम से फिर पल्मोनरी वेनस सिस्टम में पल्मोनरी आर्टरी, तो जब पल्मोनरी आर्टरियल हाइपरटेंशन होता है तो फिर आगे जाके राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट होने के चांसेस होंगे और उसकी वजह से आपको टॉलर पीक्ड वेव्स मिलेंगी। और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से आपको राइट एक्सिस डेविएशन मिलता है इन द ईसीजी। अपार्ट फ्रॉम ईसीजी हम पेशेंट का इकोकार्डियोग्राम कराते हैं। तो जब हम ट्रांसथोरैसिक इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं TTE विद कलर फ्लो एंड स्पेक्ट्रल डॉपलर इमेजिंग, तो हमें क्या चीज़ें मिलती हैं? हमें माइट्रल इनफ्लो वेलोसिटी मिलती है ड्यूरिंग अर्ली एंड लेट डायस्टोलिक फिलिंग्स। इसके अलावा हमें ट्रांसवैल्वुलर पीक के बारे में पता चलता है और हमें पता चलता है कि माइट्रल स्टेनोसिस के साथ साथ कोई एसोसिएटेड माइट्रल रिगर्जिटेशन या इसके अलावा हमें लीफलेट कैल्सिफिकेशन कितना एक्सटेंट है, कितना रिस्ट्रिक्शन है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। हमें सब वाल्वुलर अपैरेटस का कितना डिस्टॉर्शन हो चुका है ये हमें पता चलता है। और क्योंकि आगे जाके माइट्रल बैलून वेल्वोटॉमी करानी होती है तो उसके लिए हमें एनाटॉमिक सूटेबिलिटी के बारे में
पता चलता है। ये सब हमें बताता है ट्रांसथोरैसिक इकोकार्डियोग्राफी TTE। बाकी आपको पता ही है कि अगर आप ट्रांसथोरैसिक इकोकार्डियोग्राफी कराओगे तो आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर, राइट वेंट्रिकुलर फंक्शन, चैम्बर साइजेस के बारे में, ट्राइकस्पिड रिगार्जिटेंट जेट वेलोसिटी के बारे में, कोई भी वैल्वुलर लेशन है तो उसके प्रेजेंस और सीवियरिटी के बारे में, जैसे कि अगर सपोज करो माइट्रल स्टेनोसिस के साथ एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, इस तरीके की कोई चीज़ है तो ये भी आपको साथ साथ पता चल जाएगी। ये बहुत सुपीरियर इमेजेस देता है। और पता है क्या कि ट्रांस ईसोफेगियल इकोकार्डियोग्राफी आप तब करवाते हो जब ट्रांसथोरैसिक इकोकार्डियोग्राफी आपको इतने अच्छे इमेजेस या फिर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता, तो आप ट्रांस ईसोफेगियल इकोकार्डियोग्राफी यानी TE कराते हो। जब आप इस केस में चेस्ट एक्सरे करवाते हो ना, तो सबसे अर्ली स्टेज क्या आता है कि आपकी जो कार्डिक सिलोट होता है उसका जो अपर लेफ्ट बॉर्डर होता है उसकी स्ट्रेटिंग हो जाती है, पल्मोनरी आर्टरी का प्रोमिनेंस हो जाता है, अपर लोब पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं वो डायलेशन हो जाता है और पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईसोफेगस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो लेफ्ट एट्रियम है वो इनलार्ज करता है। ये सबसे अर्लीस्ट चेंज होते हैं। और उसके बाद आपको कर्ली बी लाइंस मिलते हैं। आपने सुना होगा अबाउट कर्ली बी लाइंस। येस, वी विल फाइंड इन दिस केस। और यहाँ पे आपको फाइन डेंस ओपेक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कर्ली बी लाइंस मिलती है आपको लोअर एंड मिड लंग फील्ड्स में। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डिस्टिंक्शन ऑफ इंटरलोबुलर सेप्टा और लिम्फेटिक्स विद इडीमा। अगर हम बात करते हैं माइट्रल स्टेनोसिस के डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, तो हम क्या होता है अक्सर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को मिस्टेकन किया जाता है फॉर माइट्रल स्टेनोसिस, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आपको राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट के ECG जिसमें आपको टॉलर पीक वेव मिल रही थी और चेस्ट एक्सरे एविडेंस मिलते हैं और पल्मोनरी वेस्कुलरिटी की प्रोमिनेंसी मिलती है। लेकिन क्योंकि आपको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में क्या नहीं मिलता है, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट नहीं मिलता है, कर्ली बी लाइंस नहीं मिलती हैं, और आपको मिलता है क्या? स्प्लिटिंग ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड और ग्रेड 2 और 3 मिड सिस्टोलिक मर्मर। तो वो सब फेवर करता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ओवर माइट्रल स्टेनोसिस, क्योंकि माइट्रल स्टेनोसिस में तो लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट होता है, कर्ली बी लाइंस भी हमें मिलती हैं, ठीक है, और ऐसा कुछ फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड पे नहीं मिलता। तो इसीलिए दैट फेवर्स मोर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ओवर माइट्रल स्टेनोसिस। तो हम इस कंडीशन को लेफ़्ट एट्रियल मिक्सोमा के साथ भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जहाँ पे लेफ़्ट एट्रियल के जो एम्प्टिंग है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसमें भी डिज्निया, डायस्टोलिक मर्मर और हीमोडायनेमिक चेंजेस जो माइट्रल स्टेनोसिस में मिले थे वो मिलेंगे। लेकिन अब हम इस चीज़ को कैसे डिफ्रेंशिएट करें? तो लेफ़्ट एट्रियल मिक्सोमा में आपको सिस्टमिक फीचर्स जैसे कि वेट लॉस, फीवर, अनीमिया, एलिवेटेड सीरम IgG, इंटरल्यूकिन 6 बढ़ा हुआ मिलता है। कैथराइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक इन्वेजिव टेक्निक है एंड यूजुअली फ्रिक्वेंटली ये टेस्ट नहीं करवाया जाता है, लेकिन अगर कैथराइजेशन इम्पॉर्टेंट है तो वो इस एस्पेक्ट में कि अगर माइट्रल स्टेनोसिस के साथ कोई और एसोसिएटेड लेजन होता है तो हम तब कैथराइजेशन कराते, तब इम्पॉर्टेंट होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर पेशेंट जो माइट्रल वॉल्व स्टेनोसिस या किसी भी वैल्वुलर डिजीज से सफ़र कर रहा है तो हमें स्क्रीनिंग करने के लिए कि उसमें कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ना हो, तो हम इसके लिए कंप्यूटर टोमोग्राफिक कोरोनरी एंजियोग्राफी ज़रूर कराते हैं ताकि हम स्क्रीनिंग कर सकें फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस। तो जो पेशेंट्स र्यूमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस के मतलब एट रिस्क पेशेंट हैं, उनमें र्यूमेटिक फीवर का सेकेंडरी प्रिवेंशन करने के लिए हम पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस करते हैं। और हम सेम रिकमेंडेशन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी देते हैं। सपोज करो पेशेंट के माइट्रल स्टेनोसिस के साथ और एसोसिएटेड वॉल्वुलर डिजीज़ेस हैं, तो उस केस में हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का प्रोफाइलैक्सिस भी इसी तरीके से देते हैं। अब अगर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है तो वी यूजुअली रिस्ट्रिक्ट सोडियम इंटेक एंड स्मॉल डोजेस ऑफ ओरल डायरेटिक्स आर ऑल्सो गिवन। इसके अलावा टू स्लो डाउन द वेंट्रिकुलर रेट ऑफ द पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन हम बीटा ब्लॉकर्स, नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड्स देते हैं।
जिन पेशेंट्स में माइट्रल स्टेनोसिस के जिन पेशेंट्स में हिस्ट्री होती है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की, या फिर जिनको माइट्रल स्टेनोसिस के साथ अभी एट्रियल फिब्रिलेशन तक केस पहुंच गया है, तो हम इसमें वारफेरिन थेरेपी देते हैं टारगेटेड टू एन इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो यानी INR ऑफ 2:3। अब हम बात करते हैं माइट्रल वाल्वोटॉमी की। तो जब तक कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो माइट्रल वाल्वोटॉमी हम इंडिकेट करते हैं सिम्टोमेटिक पेशेंट में। और वो कौन से पेशेंट, अगर हम न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन फंक्शनल क्लास 2 to 4 देखें तो इन पेशेंट्स में विद आइसोलेटेड सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस जिनका ओरिफिस एरिया जो है लेस देन 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया या फिर लेस देन 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन नॉर्मल साइज एडल्ट, हम माइट्रल वाल्वोटॉमी इंडिकेट करते हैं। अब माइट्रल वाल्वोटॉमी फर्दर 2 टेक्निक से होता है, PMBV एंड सर्जिकल वाल्वोटॉमी। माइट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट उन पेशेंट में जो माइट्रल वॉल्व स्टेनोसिस से और सिग्निफिकेंट माइट्रल रिगर्जिटेशन से सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों में ज़रूरी तब हो जाता है जब माइट्रल वॉल्व जो है वो पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड हो चुकी है बाय प्रीवियस ट्रांस कैथेटर और ऑपरेटिव मैनिपुलेशन। अब क्या है, मतलब सर्जन वॉल्व फंक्शन को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है विद वाल्वोटॉमी, तब उन केसेस में हम माइट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट करते हैं। उन केसेस में बहुत ज़रूरी हो जाता है माइट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट करवाना। और आजकल तो माइट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट रूटीनली परफॉर्म किया जाता है ताकि क्या हो सके कि लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन को रिकवर करने के लिए जो कॉर्डल अटैचमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए माइट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट आजकल रूटीनली परफॉर्म होता है। लेकिन क्या होता है, माइट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट कराने के बाद लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसीलिए माइट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट की ज़रूरत भी या फिर उसको वहीं करवाया जाता है जहाँ पे सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस हो, जैसे कि ओरिफिस एरिया लेस देन 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो या फिर NYHA क्लास 3 हो, दैट इज सिम्टोमेटिक विद ऑर्डिनरी एक्टिविटी डिस्पाइट ऑप्टिमल मेडिकल थेरेपी। अगर हम सर्जिकल सर्वाइवर्स के ओवरऑल 10 ईयर सर्वाइवल की बात करें तो वो लगभग 70% होता है। और लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस उन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा वर्स होती है जो मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज के होते हैं एंड दोज विद मार्क्ड डिसेबिलिटी एंड मार्क्ड डिप्रेशन ऑफ कार्डिक आउटपुट प्री ऑपरेटिवली। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। वैसे मैंने सारी चीज़ डिटेल में कवर करने की कोशिश की है, और अगर आप साथ साथ बाकी वॉल्वुलर डिजीज़ेस कवर करने की कोशिश करोगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस माइट्रल स्टेनोसिस। तो ट्राई करो कि क्लासीफाई ऑल ऑफ द वॉल्वुलर डिजीज़ेस एंड देखो कि किसमें कौन सा मरमर आ रहा है, किसमें क्या ऑस्कल्टेशन फाइंडिंग मिल रही है, किस में हमें चेस्ट एक्सरे में क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो ये सब आप अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न these topics. Now it's time to study the high yield points of mitral stenosis.